प्रेसिडेंट, आप गैरों की बात करते हैं, लेकिन हमने तो अपने भी आजमाए हैं। आप कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जगमगाए हैं। Friends, today is a very special day. Special day not because it is a Friday and first day of peak year, because Sister Shreya Ben is going to talk to us on relationship and harmony. Because of our cordial relationship, Lalit Bhai told me you finish within 5 minutes, but I am Bania. I'll finish within 3 minutes, and my time starts now. Shreya Ben has been devoting her services to Brahma Kumari ji for last 5 years. She is a surrender sister. You know, you have to surrender everything, and when you surrender, then only you will get. She is instrumental in conducting so many seminars, more than 200 seminars on stress-free life, yoga, harmony in relationship, then speed without stress. Speed without stress. And some of the wonderful ideas, you know, when I read her biodata, it is really wonderful. She is really a versatile personality. And Binduben has told me that she is Shivani in making. So those of you who have heard her on 14th last month, you know, and Mike Bhai was one of them, he would definitely agree that she is a very good orator, very good orator. Academically, she is a graduate in arts with a literature in English, and the most outstanding thing is she is qualified radio jockey. See, this is something very wonderful, and she is a qualified news reader. She was also associated with NDTV and many British Council for the consultancy, and she has a golden heart. How I can say like that? Because she is associated with so many NGOs, particularly Mitra. Mitra NGO is one where handicapped children, you know, are being looked after. So she is in fact all the good qualities of a Rotarian. And just to sum up, I would say she practices what she preaches. And the principle is that कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. So over to you. The floor is here, and my 3 minutes are over. Good evening. Good evening. I feel like I am between a family, and that was a very enthusiastic one. So, firstly, it feels extremely good to be here, not between strangers, but between friends and family. And thank you, Hemant Bhai, and everyone for giving us this opportunity. Today, we're going to talk on relationships. And one thing which also I noticed is I am between a group of people who like to give. There are few souls in the world who can think beyond themselves and about giving. And I really think it's one of very big qualities. Whatever, in whichever way we can help, that definitely shows that we have a quality of compassion. Otherwise, the thought of taking out time for others will not come to us. So yes, I think indeed I'm between very royal people. Now to begin with today's topic, is English comfortable? Hindi? Hindi. Mix, okay. Hindi will be better. Hindi will be better. भाई ने कहा कि हार्मनी इन रिलेशनशिप पर बात करें. I will have to look at the time. 9:45 should we finish? Yeah. Okay. रिलेशनशिप एक बहुत सुंदर चीज़ थी, जहाँ पर एक्चुअली जब लोगों को स्ट्रेस होता था तो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए रिलेशनशिप्स के बीच में जाते थे, और ऐसा कभी नहीं था कि रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल हो जाए, रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम बन जाए, या रिलेशनशिप एक स्ट्रेस का कारण हो.
पर आज वो थोड़ा थोड़ा देखने में आ रहा है. Am I right? Yeah. Do you find any problems in your relationships? No? Perfect? कि कोई बात होती है कि नहीं होती? क्यों relationships के ऊपर आज work करने की जरूरत पड़ी? Do you feel there is any need कि everything is perfect? There is need? क्या problem है? Communication gaps. Communication gaps. Misunderstanding. Expectations. Expectation किसकी? आपकी कि उनकी? दोनों की. अच्छा, expectation होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? I don't know. अच्छा, होनी भी चाहिए within limits. And who is going to set those limits? That is a problem. Okay. और क्या problem है? Ego. Ego clash किसकी? दोनों की. दोनों की. I will never say मेरी. Easy answer is चलो दोनों की. ठीक है. और trust. What is the purpose of relationship? हम संबंधों में क्यों रहते हैं? अकेले क्यों नहीं रह सकते? And I perfectly feel कि relationship बहुत ज़रूरी है. हम लोग centers पर भी रहते हैं, so we are 5, 6, 7 people. And like brother said, we have surrendered everything. Actually, we have not. We barely surrendered anything. And हम भी family में रहते हैं, मिलकर रहते हैं. It's a pleasure. लेकिन purpose क्या है relationship का? क्यों हमको मिलकर रहना अच्छा लगता है? क्यों अकेले रहना इतना अच्छा नहीं लगता है? Brings you happiness. It brings you happiness. Yes. You want to express. You want to express. There's a sense of security. There is moral support. There is sharing. So there is some give and take, right? There is expectation. You expect, they expect, and all the things. There is give and take, right? Is that so? In business, what do you do? Business में क्या होता है? Give and take. Relationship में भी? और relationship में तो आजकल give and take भी नहीं है. Relationship में आज क्या हो गया? प्यार. See, even though we are going to talk something which is going to take us within, even though we are all sitting here, other people who like to give, but when it comes to love, respect, appreciation, ask yourself, पहला thought क्या होता है कि ये जो है ये मुझे प्यार से बात करे, ये मुझे respect दे, ये मुझे appreciate करे, ये मुझे acknowledge करे. तो relationship में हमारा हाथ आज कैसे है? दे. You know, that is the biggest problem, क्योंकि एक business में भी लेन देन होता है. And that's just a business. कुछ आप देते हैं, कुछ आप लेते हैं. The purpose of relationship actually is not in give and take. It's not. The purpose of relationship is actually to give and give. पर जैसे हम कहते हैं कि purpose relationship का देना है, पहले तो दो बातें. जिनसे आप लेना चाहते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी केयर करे, वो मुझे प्यार दे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे, आप एक मिनट रिफ्लेक्ट करो. जिनसे आप ऐसे हाथ करके खड़े हैं, उनके पास है? ये इस तरह से है कि कोई बैंकक्रप्ट है और आप उसके पास जाकर के कहो मुझे आपसे ही लोन चाहिए, तो वो क्या कहेगा? माफ करो, आगे बढ़ो. वो कहेगा आपको मुझे देना चाहिए, इस समय मैं बैंकक्रप्ट हूँ. ये जो रिस्पेक्ट और लव है, ये एनर्जी है, और ये एनर्जी ऐसी है कि जिनके पास है उनसे ये नेचुरली फ्लो होती है. अगर ये उनसे फ्लो नहीं हो रही है, माना ये उनके पास नहीं है. ये चीजें मांगी नहीं जाती हैं. इट्स एन एनर्जी दैट विल कम टू यू.
So the first thing is, maybe in front of the person you're standing, they probably don't have it. और इन सब का स्टॉक आज वैसे भी दुनिया में थोड़ा सा कम है। और दूसरी बात जो फिर तुरंत थॉट आता है कि अगर मैं ही देता चलूं, हर समय मैं ही दूं, मैं ही प्यार से बात करूं, मैं ही सबको रिस्पेक्ट दूं, तो मुझे कौन देगा? आता है ये थॉट कि नहीं आता है? कौन देगा मुझे? कौन देगा मुझे? क्योंकि अगर मुझे देना है तो पहले मेरे पास होना भी तो चाहिए ना। Yes, who will give it to me? Yes, your own self. आपने कभी गुस्सा किया? Daily once, twice. Very easy question, huh? जब आप गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को कौन फील करता है? कभी एक्सपीरियंस किया? जब आप गुस्सा करते हैं, सामने वाले के पास फिर भी चॉइस है। अगर वो अच्छे मूड में होता है तो कहते जाने दो ना, आज लगता है जरूर घर में कुछ हुआ होगा। They have a choice, but when I get angry, I will definitely get burnt in that negative energy. ये इस प्रकार से कि अगर आपको गर्म कोयला किसके ऊपर फेंकना है तो पहले आपका हाथ तो चले गए। Similarly, अगर मैं किसी से प्यार से बात करती हूँ तो सबसे पहले वो लव की एनर्जी किसको मिलती है? अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं या हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, एक्चुअली हम किसी के ऊपर भी फेवर नहीं कर रहे हैं। हम किसके ऊपर फेवर कर रहे हैं? क्योंकि वो एनर्जी मेरे से निकल करके आप तक जाएंगी। और फिर न्यूटन का लॉ भी क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो पहले तो वो मेरे से होकर के आप तक जाएंगी, आपको हिट करेंगी और नेचुरली वो मेरे पास वापस आएंगी। रिलेशनशिप इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। See, it is not what I speak and what I do, because we are brilliant at acting. Yes. Can it happen that I look at the brother and I say, कितनी wonderful shirt आपने पहनी है, कितनी अच्छी आपको लग रही है, and can I think, ये क्या पहन कर रहा है? हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इनको करना आता है कि नहीं आता है? आता है, आता है। सबसे रहता है brilliant at acting। आपको क्या लगता है औरों के पास क्या पहुंचता है? वर्ड्स पहले पहुंचते हैं कि हमारे थॉट्स पहले पहुंचते हैं? And that is why we try so hard to create a relationship, but it is really not what you speak and what you do. आप घर पहुंचते हैं अभी यहाँ से 9:45 बजे, मानो आप घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके बस आप रिटायर होने जा रहे हैं 10 बजे और फिर बेल बजती है और वहाँ पर 2 गेस्ट आ जाते हैं। आप उन्हों को देख करके स्माइल भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं और अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं, कहाँ से आ गए? एक फोन करके तो आना चाहिए था कि नहीं? आता है कि नहीं आता? फिर आप उनको इनवाइट करते हैं और फिर बहुत प्यार से कहते हैं आपको देख करके बहुत खुशी हुई, कितने दिनों से आपसे मिलना चाह रहे थे। Then you invite them, you sit together, you talking, फिर आप खड़ी भी देख रहे हो, चाहते ही नहीं, चाहते ही नहीं। इतने में वो कह देते हैं अभी हम चलते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? रुक जाओ थोड़ी बार, अभी ना जाओ छोड़ के। इतने दिनों के बाद आए हैं, आज तो आपको खाना खाकर जाना है। You think it's just a courtesy ना? वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इतना लेट हो गया। अब कहते हैं अभी कल सैटरडे है, छुट्टी है, आज तो खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। And then when you insist, तो फिर वो भी कहते थे ठीक है आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम अंदर क्या सोचते हैं? कैसे लोग हैं? पहले तो बिना बताए आते हैं, अब कहते हैं कि खा करके भी जाएंगे।
And then the very respectable lady offers, मैं आपको किचन में आकर हेल्प करा? आप कहते नहीं, आप बैठकर बातें करो. All the sisters are nodding yes. And then we go in the kitchen, and then what do we think? ये भी कोई पूछने की बात है, आ जाना चाहिए ना. Who are we laughing at? Yes, it's interesting because we think that it's only about what we're doing and what our behavior, but it's not. Actually में हमारी हर एनर्जी उन तक पहुंचती है. उनको भी पता चलता है, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं है. But it is okay with people who we meet once in a while, but it's not okay with people who we live. Actually, it's not okay with anyone. लेकिन mother-in-law, daughter-in-law, parents, बच्चे, फिर वो धीरे धीरे आपस में बाहर का बिहेवियर बहुत अच्छे होते हुए भी अंदर से एक सफोकेशन जैसा अनुभव होता है. अगर कोई भी रिलेशनशिप ठीक करनी है तो कितने लोग लगते हैं? कोई रिलेशनशिप ठीक करने कितने जने चाहिए? एक ही चाहिए. One. The good news is you don't need two, you need one. And all you have to do is, अगर मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक करनी है, and if I care for that person, not for you, I care for that relationship, I promise to myself that I will not create even one negative thought for you. Not even one. Because that negative energy is going to hit you and it's going to come back and it's going to be a vicious cycle. उसको तोड़ने के लिए दो नहीं चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए कि मुझे ये संबंध ठीक करना है तो मुझे इन्हों को पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है. संबंध में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि ये सामने वाला गलत है. ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मैं राइट हूँ और ये गलत है, जिसको अभी हम ईगो के लिए कह रहे थे. क्या ऐसा हो सकता है कि anything, maybe this little thing which is kept here, ऐसा हो सकता है कि ये जो सिंबल है मुझे बहुत अच्छा लगे. और फॉर एग्जाम्पल दैट पेंटिंग, ऐसा हो सकता है कि वो पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगे और आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे. हो सकता है कि नहीं हो सकता? इज दैट राइट और इज दैट रॉन्ग? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या ऐसा जरूरी है कि हर वो चीज जो मुझे अच्छी लगेगी वो आपको भी अच्छी लगेगी? But this is where we get stuck. I bring this painting and I say, अरे देखो ना कितनी सुंदर है और कितनी सस्ती है. आपके सस्ती इसके आधे रेट में मिलनी चाहिए और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. Now what actually happens is, मुझे कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हम इसमें क्या गलती करते हैं? हम कहते हैं मैं राइट आप रॉन्ग, मैं राइट आप रॉन्ग. तो मेरे से आपको एनर्जी कौन सी गई? नेगेटिव. एक्चुअली में ये सच नहीं है. एक्चुअली में मैं भी राइट हूँ, आप भी राइट हैं. हम सही गलत नहीं है, हम अलग अलग हैं. Does this make some sort of sense? हम दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं. हम हमेशा अलग अलग रहेंगे, always. That doesn't mean I am right and you are wrong. छोटी छोटी बातों पे ही तो झगड़ा हो जाता है. घर में पेंट भी करना है तो एक कहेगा रेड कलर, दूसरा कहेगा वाइट कलर, तीसरा कहेगा ब्लू कलर. Because we are different people and we have different choice. That doesn't mean you are wrong and I am right. It just means we two are different. और हम हमेशा different रहने वाले हैं. कोई भी दो जने एक जैसा नहीं सोचते हैं. ट्विंस भी होंगे ना, केवल एक जैसा दिखते हैं लेकिन एक जैसा सोचते नहीं हैं. पर जैसे हमको कोई ऐसा मिलता है जो हमसे अलग सोचता है तो हम तुरंत उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट. कुछ दिन पहले एक फादर आए मेरे पास. उनका सन अभी 10th
कंप्लीट करके कॉलेज में गया है जस्ट। कॉलेज कर रहा है तो आपको पता ही है, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेल मैनर्ड फैमिली। तो वो फादर आके कहते आपको पता है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? कहते कल मेरा बेटा घर आया और वो आकर के मुझे कहता है कि मुझे स्मोक करने की दिल होती है। I said okay, then he said okay. I said then what did you do? If you were in his place and if your son or rather say daughter comes back home and says I feel like smoking, honestly आपका रिएक्शन क्या होगा? No. Honestly, the immediate reaction, the honest answer. I stress on the word honest. What? What? So you will be probably shocked. Then? Why? Or like a shock? Then? No. No. So you will refuse, or you'll probably get Angry. angry. And in some circumstances, when you get very angry, and it's about your ego, आपका हाथ भी कई बार उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है? उठ जाता है। And that is why sometimes people have to, government has to create laws now. Okay, if a parent raises his hand on the child, they can be put behind the bars. See, we lose control on something which is slave to me. Sense organs मेरे गुलाम है, लेकिन कई बार हम इनके गुलाम बन जाते हैं। Now for a second just ask yourself, फिर से वो सिचुएशन देखते हैं। वो बच्चा कॉलेज में है जहाँ के एनवायरनमेंट में सब क्या समझते हैं कि स्मोकिंग क्या है? Cool. कूल है, यस, फैशन है, स्टाइल है, यस यस, Status symbol. स्टेटस सिंबल है और ट्रेंड है, फ्रीडम है, इम्प्रेस करने के लिए है, मेच्योरिटी है, स्ट्रेस बस्टर है। And this one boy came up to me and said, "Sister, it's very manly to do it." Yes. Yes. Now ऐसे circumstances में अगर उस बच्चे को, डॉटर और सन को अगर ये संकल्प आता है, थॉट आता है, I feel like smoking, is he right or wrong? Not actually, ma'am. He is perfectly right. He is absolutely normal actually. कभी हमको संकल्प नहीं आया किसी को देख करके इनका फोन बहुत अच्छा है, मेरे पास भी हो। For him that time, he thinks smoking is cool and fashion and style statement, even though the packet has a written note, it's injurious to health. And you see the beauty, वो करता नहीं है, वो किसके पास आकर के शेयर करता है? वो पेरेंट्स जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब वो उन्हों को ऐसा बताता है तो उनकी तरफ से एनर्जी कौन सी जाती है? When you scold a child or when you raise a hand on a child, it's an energy of negative energy and somewhere energy of disrespect. आपने उन्हों को disrespect किया। और कई बार जब पेरेंट्स ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हों को फिर लगता है कि ये अब दोबारा नहीं करेंगे, हमने डांट दिया, हमने समझा दिया, अब ये दोबारा नहीं करेंगे। होता क्या है? वो करते हैं लेकिन अब वो बताते नहीं हैं। ज़्यादा डेंजरस कौन सा है? You know, because come on the child position, actually what happens, वो पेरेंट्स जो उसको एक्सेप्ट करते थे उनसे उनको अभी अभी रिजेक्शन मिला। अब एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जो उनको एक्सेप्ट करता है, अगर वो उसको ना कहता है तो वहाँ से भी रिजेक्शन। एक व्यक्ति इतना रिजेक्शन फेस नहीं कर सकता है, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू डू इट, लेकिन केवल उस पीयर के प्रेशर में आकर के एक्सेप्टेंस के लिए, लव के लिए, रिस्पेक्ट के लिए वो कर देता है। इज देयर एनी अदर वे? कोई चॉइस है हमारे पास उस समय? वो आकर के हमको कुछ कहता है, हम किसी भी और तरह से रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं?
क्या कर सकते हैं? How? Explain. Even before explanation, the first thing is this face value. You can't be shocked. You can't be shocked because what he's saying is absolutely right. अगर एक भी बात हम कह देते ना, it's okay, it's a stage of experimentation. आपकी उम्र में हम थे तो हमको भी ये करने का संकल्प आया था. Just these 2 lines sends him the energy of respect. और वो हमारे एक स्टेप क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं. जब वो हमारे नजदीक आते हैं, अब आप उनको कोई भी बात समझाएंगे, वो बात उनको समझ में आएंगी. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को एम्पावर करना कि वो फिर कल किसी भी चीज को ना कह सके. इतना स्ट्रॉन्ग उनको बनाना, इतना एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पेक्ट देना कि कल को वो ग्रुप में कह सके, आई डोंट वांट टू डू दिस. बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग, दैट लिटिल चाइल्ड, आप देखो वो छोटा होता है तो सब कुछ बताता है कि नहीं बताता है? बताता है कि नहीं बताता? इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड. वो गोल 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 घूमकर आपको सब कुछ बताएगा. स्कूल में क्या हुआ, वो टिफिन में क्या लाया, उसने क्या पहना, एवरीथिंग. And you sometimes don't even want to listen, but he goes around and tells you everything. जब वो 15 साल का हो जाता है तो वो आपके आगे पीछे घूमना बंद कर देता है. अब आप पता आज कहाँ गया था, स्कूल में क्या हुआ, किसका फोन था. And then what he says, please don't disturb me. He changed क्यों आया? Same parents, same children, everything same, but he changed क्यों आया? क्यों change आ जाता है? And he still wants to share, huh? But he's not sharing with us now. Now he's sharing with his friends, because his friends now accept him. वो वही बातें आकर बताता था, लेकिन 5 साल 6 साल तक वो बताता था जो आप सुनना चाहते थे. वो बिल्कुल आपकी रिफ्लेक्शन था. जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अलग एनवायरनमेंट में गया, अलग इन्फ्लुएंसेस पड़े, उसकी आइडेंटिटी बाहर आने लगी. फिर किसी दिन उसने आकर के कुछ ऐसा बताया जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगा. समथिंग लाइक, टुडे आई बंक्ड अ क्लास एंड आई वेंट फॉर अ मूवी. वो भी आकर के बताएगा, लेकिन अगर उस दिन हमने रिएक्ट किया तो उस दिन उसको एक मेंटल नोट बन जाता है, इनको ये बताना है और इनको ये नहीं बताना है. It's not that he stops doing it, no, because he still hasn't understood why not to do it, because he still thinks that it is right. उसको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आती है. And you know what the tragedy is? So many children have so many problems, and with their problems they're going to not their parents, और किसके पास वो जाते हैं? Friends पे नहीं. When they're in problem, तो वो फिर एक और व्यक्ति के पास जाते हैं, काउंसलर्स. आज इतना बूमिंग प्रोफेशन है, वो लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं और अपनी सारी स्टोरी एक स्ट्रेंजर के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं. क्यों? Because anything they are going to say, at the end of the story, the counselor is going to say, it's okay, never mind. But वो counselor ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या दे सकता है? एडवाइस. लेकिन उस एडवाइस पर चलने के लिए ताकत कौन उनको देगा? And every email that we receive from these children, the last line is, please don't tell our parents. And we don't know what to do, because every counselor, even us, we can just advise the child. पर उसको जो empowerment मिलनी है, वो तो उनसे मिलेगी जो उनके साथ रहते हैं. And what is even more ironic, काउंसलर्स जो सबको काउंसल करते हैं, when it comes to their own child, they are not able to counsel. Why so?
No, because a few days back एक बहन अपने बच्चे को लेकर आई, तो वो मिला रही थी, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं काउंसलर हूँ। I said then कहते लेकिन मैं इसको काउंसल नहीं कर सकती, क्यों? She judged him. Not exactly prejudice. Attachment. Is attachment good? परिवार में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? अच्छा, अटैचमेंट और प्यार में कोई अंतर है? एनी डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव? व्हाट इज द डिफरेंस? प्यार में अटैचमेंट नहीं है। प्यार में, हाँ, इंटरेस्टिंग ना? अटैचमेंट emphasizes and insist you do this. Attachment now it's without like that. That's what I feel. Yes, yes. Attachment is if a person is in pain. yes. And if you're attached to that person, you also get into pain. Right. That's not You've been watching some episodes, I guess. To pick up so exactly you did it. But it's a good thing. It's a good thing to understand where we are going wrong. Attachment जब होती है, this is what we learned here. हमें भी लगता था कि attachment right है, लेकिन जब attachment होती है किसी के साथ, तो आप डरते रहते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो, क्योंकि उसके साथ कुछ होगा, वो दर्द में जाएगा, तो आप भी उसके साथ साथ दर्द में जाएंगे, तो आप डरते रहते हैं। और डरते भी रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो जो आपका बच्चा है वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, उसकी एक यात्रा है, न चाहते हुए भी उसकी जर्नी में कुछ तो बातें आएंगे ही, आप चाहे या न चाहे। वो आपके घर में जन्म लिया है, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट टू टेक केयर ऑफ हिम, ही इज नॉट योर प्रॉपर्टी। We cannot get attached to them. He is an identity, and my role is to guide him. But when I forget this, and when I get attached to my child, so the exact moment when he needs me, I am not there. जब वो दर्द में है, अगर मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो मैं उसको क्या मदद कर सकती? अगर वो दर्द में है, तो मेरा रोल उस समय क्या होना चाहिए? वाइफ आता, हस्बैंड आता, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब छूट गई, वो दर्द में घर लौटे हैं, एक दूसरे व्यक्ति का उस समय रोल क्या होना चाहिए? आप यहाँ पर आए, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कहीं जाते हैं, आप किसी पार्टी में गए, 4 जने गए, वहाँ कुछ बाहर ऐसा खा लिया कि 3 जने बीमार हो गए, एक ही स्वस्थ है। अब जो एक स्वस्थ है, उसका रोल क्या होना चाहिए? देखभाल करना, सबको, वो अकेला सबके लिए, जो जिसको खाने के लिए चाहिए, आगे पीछे सबकी सेवा करे कि तीनों में क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए। क्या या वो ये सोचे कि 3 तो ऑलरेडी बीमार है, चलो एक और खटिया डाली, मैं भी इनके साथ ले जाता, नहीं ना? जो बीमार है, तो एक जो स्वस्थ है, उसका रोल है कि इन्हों को बीमारी से बाहर निकाले। आज जब कोई घर में आता है जिसकी जॉब छूट गई है, जिसकी किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है, जो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है, जो बहुत किसी चीज़ पर मेहनत कर रहा था लेकिन अचीव नहीं कर पाया है, उसकी हालत उस समय क्या है? वो उस समय दर्द में है। एज अ पेरेंट मेरा रोल क्या होना चाहिए? उसको उसके दर्द से बाहर निकालना। लेकिन वो तो तभी पॉसिबल है ना, जब उसके दर्द को देख करके मैं दर्द में न जाऊं। That is the role of a parent, and that is why to empower your family, you have to be empowered. When I tell people, आप 1 घंटा अपने लिए निकालो, तो वो क्या आंसर देते हैं? टाइम नहीं है। Then I say, अच्छा, तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? So what is the first priority normally? What is the first priority? Family, child, husband, everybody family.
And what is the second priority? Business, work. So first priority is family, second priority is work, and third priority, थोड़ा समय मिला तो अपने लिए निकाल लिया, otherwise it is too selfish to take out time for myself. This is something which we believe. Now just imagine, I get up in the morning and I'm not empowered. I'm not empowered in the sense I am not peace, happy, but more a little irritated. You know, most of the times, उठते हमारा पहला संकल्प क्या होता है? कभी ऐसा नहीं होता कि काम पर जाना है. उठते क्या संकल्प होता है? आज काम पर फिर से जाना पड़ेगा. One thought and the energy changes. एक thought है कि मुझे काम पर जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे प्यार से इन्हों के लिए नाश्ता बनाकर देना है, और दूसरा है आज पर से काम पर जाना पड़ेगा. हर रोज की तरह आज पर से किचन में खाना बनाना पड़ेगा. फर्क है कि नहीं है? And that one thought and my energy starts to drain. And for example, like we said, my priority is my family. हम उठते हैं, काम पर जा रहे हैं, और मानो अगर ब्रेकफास्ट बनने में या लंच बनने में 10 मिनट भी देरी हो जाए तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? कई बार थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं, थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा दो बात भी उनको कह देते हैं, टाइम से पहले नहीं उठ सकते क्या? ना जिस फैमिली को आप खुशी देना चाहते थे उसको सुबह सुबह क्या दे दिया? और फिर वर्क प्लेस में भी जाएंगे तो उस स्थिति के साथ जाएंगे तो वहां पर भी कैसी एनर्जी फैलेगी? I have to understand, if I really want to give happiness, if I really want to give love, I have to be love and happiness. I have to empower myself, and that is where meditation comes in. Meditation हमको ताकत देता है. See, it is not understanding. आधा पौना घंटा हम सुनते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, हर अच्छी बात सुनने में अच्छी ही लगती है. अच्छी अच्छी बातें हैं तो कानों को भी अच्छी लगती है, लेकिन ये अच्छी बातें मेरे जीवन की धारणाएं बन जाएं, प्रैक्टिस बन जाएं, उसके लिए अपने अंदर पावर डेवलप करनी पड़ती है. पावर which is not physical power, it is not even intellectual power, it is a spiritual power. Power to accept, power to understand, power to face, power to tolerate. और ये मेडिटेशन करते करते बढ़ने लग जाते हैं. आपको महसूस भी नहीं होता कैसे आप सामने वाले को इतनी आसान तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं. Because we have to understand that both of us are different, yet we are both right. You know, it's like ये माइक्रोफोन है और anything ये है. आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको कौन से कलर का दिखाई देता है? White with something written in black, right? मैं यहाँ से देखूँ तो plain white है. आप वहाँ से देख रहे हैं white है with something scribbled in black. मैं यहाँ से देखूँ तो plain white है. आप right हैं कि मैं right हूँ? आप राइट कि मैं राइट? नहीं, कौन है राइट है, राइट है, राइट है. आप कहेंगे राइट स्क्रिबल्ड विद ब्लैक है. कब तक आर्ग्यू कर सकते हैं? दोनों राइट है. अपनी अपनी जगह पे दोनों राइट. सोच के बोलना, क्योंकि ये आज से यूज होगा फिर. अगर दोनों राइट हो तो कभी भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है. झगड़ा कब होता है? झगड़ा कब होता है? जब एक राइट है और एक गलत है. I went to somebody's house, and I'll finish with this. I went to somebody's house and they were having an argument. And then when I reached there, they said, अभी आप आए हैं ना, अभी आप ही बताएं हमारे में कौन राइट है और कौन रॉन्ग है. What happened? They said, the husband said there was something very heavy in their room, as heavy as this. कुछ सोफा आदि होगा. तो उन्होंने कहा कि मैंने इन्हों को कहा था आज सुबह कि ये एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर रखवा देना. तो रात हो गई, वो बहन भी भूल गई, भाई भी भूल गए, दोनों रात को सो गए. और अचानक
वाइफ की आँख खुली होगी रात को 2:30-3 बजे, तो उसको एकदम ध्यान आया कि माई हस्बैंड हैज आस्क्ड मी फॉर दिस लिटिल जॉब। तो वो रात को उठी और वो अकेले उस भारी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुश करती है। और जब वो ये कर रही है तो वो अपने मन में एक इमेज क्या देख रही है कि सुबह उठ करके जब वो देखेंगे कि अकेले मैंने रात को ये यहाँ से वहाँ रखा, तो ये देख करके बहुत खुश होंगे। नेचुरल सुबह होती है, वो भाई जब देखता है कि इतनी भारी चीज यहाँ से वहाँ रखी है, तो वो खुश होने की जगह उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहते हैं आधी रात को इतना भारी सोफा अकेले इधर से उधर रखने की क्या जरूरत थी? आपको कुछ हो जाता तो सुबह होती मिल करके हम वहां से मिल करके रख लेते। वो कहते आधी रात को आपके लिए मैंने इतना भारी सोफा वहां से वहां रखा और आप खुश होने की जगह मुझे डांट रहे। एंड यू नो हाउ विद आर्ग्यूमेंट्स एक बार शुरू होता है तो 2 साल 4 साल 10 साल memory is very good then. वो सब कुछ and sometimes you will forget कि आप आज किस बात पर झगड़ा कर रहे थे। And then they said अभी आप ही बताओ हम दोनों में से कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, आप बताओ। और वो अच्छा तो अपने अपने नजरिए से everyone is right. Everyone in the sense, even a terrorist. Yes. अगर आज उन्हों को आप भी पूछेंगे ना कि आप ये क्यों करते हैं, तो वो आपको भी एक बहुत सुंदर सा justification दे देंगे। It doesn't mean that action is right. It only means in that moment that they are right. अगर आपको किसी को चेंज करना है तो आप उन्हों को एक्सेप्ट करे बिना, रिस्पेक्ट करे बिना चेंज नहीं कर सकते। वो गलत नहीं है, उन्हों का एक्शन गलत है। And I'm saying this, I remember अभी पेशावर में एक अटैक हुआ था स्कूल के ऊपर। Do you remember? Couple of months, I think 2-3 months. And little children were killed. And I had been watching news that time. और उसमें एक बच्चे की फोटो जो वो स्कूल में था लेकिन वो बच गया था और उसका इंटरव्यू वो ले रहे थे और वो बार बार कह रहा था मैं बड़ा होकर के इन सब को खत्म कर दूंगा, मैं बड़ा होकर के, because he was very little and he had witnessed something which was so shocking. Now, अगर ये बच्चा इसको कोई गाइड नहीं करता है और ये बड़ा होता है और अगर ये ऐसा कुछ भी करता है तो इसके पास एक जस्टिफिकेशन है कि नहीं वो करने के लिए, उस इनोसेंट बच्चे के लिए। Everybody has a history. और अगर सच्ची में हमको किसी को भी चेंज करना है तो हम उन्हों को नेगेटिव एनर्जी देकर रिजेक्ट करके आप चेंज नहीं कर सकते। That's what we learned in Brahma Kumaris. Even when we come here, they accept us the way we are, with our weaknesses and qualities. We're not saints. लेकिन फिर धीरे धीरे वो acceptance और वो love, कोई आपको कहे कि सब कुछ ठीक है, बस इतना सा आपको change करना है. So you're ready and you want to change yourself. That's the power of acceptance. So whenever we are in relationship, 2 things. I can't go on now with the time here, but 2 things. One, it's about giving. It's not about taking. And when I'm giving, actually I am the first person to receive it. So it's not a favor to anyone. जितना आप देंगे, वो पहले एनर्जी आपको फील होगी, आपसे जाए